नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश आपका राजगंज में स्वागत करता हूं। श्रीमान, बचपन से आपने एक चीज़ सुना होगा, इंग्लिश में एक कविता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। चलिए थोड़ा सा इसको हम पैरोडी मोड में लाकर आपके पास रखते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और झारखंड को जगाने निकला है जयराम मेरे यार। हम नहीं कर रहे, हम पर मत आरोप दीजिएगा। मैंने सदैव एक बात कहा है, ना पक्ष ना विपक्ष, मेरे पास जो भी सामने पड़ेंगे श्रीमान मैं तो उसे पूछूंगा, मेरा ये काम है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन भीड़ की गोलबंदी और प्रेशर पॉलिटिक्स में वन ऑफ द मोस्ट कॉन्क्रीट पिलर ऑफ झारखंड, एंड ही इज नॉन स्टेबल फ्रॉम द साइड्स ऑफ पॉलिटिकल प्ले, बट नाउ ही इज स्टेबल फ्रॉम द साइड्स ऑफ पॉलिटिकल स्टंट। भैया जी आपका स्वागत, क्या हालचाल? हालचाल तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी झारखंड की उम्मीदें हैं हम लोग, तो इसीलिए संघर्ष करना पड़ता है। और हम चाहेंगे कि आप लोग का हालचाल ठीक रहे। फोर्थ पिलर अगर ठीक रहेगा तो झारखंड ठीक रहेगा। गुपचुप खाए? गुपचुप का उतना पसंद नहीं है हम लोग को, पसंद आता है थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, मुरब्बा हो गया, खुरमा हो गया, ये सब पसंद आता है। उसके बाद अपना जो झारखंडी व्यंजन। गुरुजी, देयर इज अ स्टेटमेंट इन इंग्लिश, फैक्ट डज नॉट नीड एनी प्रूफ, but there is a proof of crowd that the people who are standing here in front of the Jairam Mato, there is a single reason. There is a heart attachment, there is a non-political statement. Even the heart attachment is that it started, the people came from that 11 o'clock and waiting till 9 o'clock. What may be the basic reasons regarding this crowd, Jairam ji? The major reason behind this crowd is exploitation. That exploitation that we are facing from last 23 years in our Jharkhand land. Everyone, government employment, workers, farmers, students, everyone in these states continually. When you are delivering your speech, I was listening very constantly to you that you are having a single point, that land exploitation has been continued for the last 23 years. We can go 50 years back also. So why you have just targeted for the last only 23 years? No, almost after independence, the people of Jharkhand lost their land in many more. In every land education, like dams, schools, roads, rails, in everywhere, we lost most of lands. Okay, don't you think that the politicians, they are under pressure after having this much of the crowd in front of you? Obviously, they are in pressure because last night. They are in pressure, or you are generating pressure? I don't think that it is a pressure politics. No, they are in pressure because crowd support me. People love me. They will cast their vote to you in voting system, or this is only the love or the heart attachment to you? Yes, this is a big challenge, that how can we convert this crowd into a vote. It's a big challenge, but we hope, and for this we are working hard, night to day, day to night, with unstoppable. So I hope. And do you think that you are a classified politician right now? No. From the entire 81 constituency, No. when we think that, are you classified? No. It is not easy to fight in 81 assembly. We are in a young age. We are in learning period. So we are trying to change the You are only in the sense of the CNT section. You are not going towards the sides of SPT. What may be the basic reason in the comparison scale? Whenever I will go to the Santhal Pargana, definitely I will discuss in SPT Act. When we think about the crowd section, when CNT is still alive, but lands are exploited by the, I don't want to take the name of who are exploiting them, but the fact, while delivering your speech, you have told that everyone is exploiting a Jharkhandi. Is it right? Because the major reason behind this exploitation is minerals. From newspaper, we heard that in Khoti, Ranchi and Saraikela, there is a source of gold. In Gumla, Simdega, Lohardaga, there is a source of diamonds. So they want to loot the minerals of Jharkhand. Okay, when you started this statement, that earlier you told that I would like to go to the Vidhan Sabha. Now finally you have decided for the Lok Sabha, and you are giving the honest and open challenge to the Mr. Modi. What we will think about this statement? Because every policy that from Delhi,
totally harassment for Jharkhandi, totally the matter of exploitation, land policy. If somebody will exploit you, then you will give the threatening in open platform. You are giving threatening to the entire political parties of Jharkhand. Because they are exploiting us through misusing the power. So the power of political. So when our MP will be elected from the people, they will definitely ask the questions from the Prime Minister, what are they doing for Jharkhand? You are talking about the 371A. Do you think Jharkhand is equivalent to Nagaland? Or Nagaland is having the entire statements which are equivalent to the Jharkhand? Not only Nagaland is included in 371. Jharkhand is not on the based on the Bhasha Sanghal Samiti. Na? Why not? Jharkhand is made on the basis of language. Not language. Then why you are But taking the why examples of why 370? Why not we can demand? We cannot You demand. can demand, but you are giving the example of Nagaland. We can demand. The entire statements of the Nagaland. Maharashtra, Telangana, Andhra, many states are including in that section 371. So because Jharkhand is also a poor state with maximum minerals, then country Delhi has to decide about the Jharkhand. To whom you are fighting? There is a simple question from my side to you. To whom you are fighting? We are fighting against the corrupt system, not personally, against the system. You We are taking the name of Sansad, you are taking the Yes. name of MLA. Yes. Then because why don't you take the name? They are responsible. They are responsible. If they will not responsible, I will never ask. I will never set any question. Don't you think that you are targeting the Bihari, UP No, politicians? never. Why? Then you are taking the Why name of the will- Raj Sinha or the Pasupatinath or the other things. You are not taking the Dr. Yes, Lambodar. definitely today I will. No, you have not opposed. No. You have told this thing. Today I ask question from the local MLA, local MP. Both are from Jharkhand. किनके लिए लड़ रहे हैं? अब आइए, किनके लिए लड़ रहे हैं जयराम जी? I am fighting for exploited, oppressed, marginalized, downtrodden. You are doing your PhD on the basis of the colonialism, no? Isn't Yes, it? No? yes. So don't you think that the industry is also quite important for Yes. development? Yes, Then you are definitely. against of industry, no? Yes, I am also against of industry. I ask question from CMD. You want to make every student, every Jharkhandi a farmer or industrialist? Obviously, most important thing is land. After that, industry, because industry has a limited time. They will be established. It will be established in every parts of country, in any parts of country or states for a temperament time. But land. While delivering your speech, you have told one statement, Gangua ki. Yes. Gangia. Yes, Gangua I want ki to. I want to know this statement that how the people will understand these things. You are taking a person who is poor and his wife when he goes. Just explain this. यस क्योंकि अब ये थोड़ा सा हम सरल भाषा में बोलेंगे ताकि हर एक व्यक्ति को समझ में आएगा। मैं ये उदाहरण देता हूँ कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री लंबी सेखी बघारते हैं कि भारत राष्ट्र एक उन्नत शक्ति के रूप में, एक महाशक्ति के रूप में, एक ऐसी देश के रूप में उभर रहा है जो आने वाले दिनों में देश दुनिया में नाम करेगा। अच्छी बात है, लेकिन क्या वो आकलन किसी एक उद्योगपति की आर्थिक उन्नति से लगाई जाएगी या वो आकलन एक आम व्यक्ति? मैं ये कहता हूँ कि भारत एक उन्नति वाला राष्ट्र, भारत एक बेहतर राष्ट्र तभी माना जाएगा जब यहाँ किसी उद्योगपति की पत्नी 2 लाख 3 लाख की साड़ी पहनेगी, उस दिन नहीं। जब गांव के सबसे गरीब व्यक्ति जिसके नाम संभव गंगवा हो, उसकी पत्नी गंगिया हो, जब उसकी गठरी में वो पैसा होगा जो बाजार का मूल्य, बाजार में जो वस्तुएं उसके दिनचर्या के जीवन के लिए उपयोगी हैं उनकी खरीद कर पाती है और कुछ बचत करके अपने चुकरी में यानी बैंक बैलेंस कर पाती है, उसके बाद उसके चेहरे में यदि मुस्कान होगी तभी भारत एक उन्नति का राष्ट्र। मतलब आपका कहना है कि आपका कहना है कि सामाजिक समानता, समानता के साथ आर्थिक समानता भी जरूरी है। आर्थिक समानता महत्वपूर्ण है। आर्थिक समानता सबसे महत्वपूर्ण है। आज जो आपकी सरकार सबके बैंक के खाते में बिल्कुल बराबर पैसे कर देगी क्या? नहीं, आप सबको बेहतर ऑप्शन दें, बेहतर विकल्प दें।
आप बेहतर पॉलिसियाँ बनाएं। भारतीय संविधान आर्टिकल 39 में भी इस बात का जिक्र है, 44 में भी कि जो भी भौतिक संपदा हैं, जो भी देश के सोर्सेस हैं, गांधी का भी कथन था कि रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर गिड, यानी जो भी संपदाएं हैं वो मनुष्य जाति में बराबर वितरण हो या फिर समान वितरण हो, उसकी ज़रूरत के हिसाब से वितरण हो। लेकिन यहाँ आप तो देख रहे हैं श्रीमान, लेकिन आप तो डायरेक्ट स्वरोजगार का विरोध करते हैं। माननीय हेमंत सोरेन जब इस बात को कहते हैं कि स्वरोजगार के लिए आगे बढ़े, तो आप डायरेक्ट विरोध क्यों करते हैं? विरोध नहीं करते, हम उदाहरण देते हैं। मान्यवर वरिष्ठ पत्रकार महोदय भैया जी, हम ये कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री स्वरोजगार अगर करना ही है तो सीता सोरेन की बेटियों को बोलिए, आप अपने बच्चों को बोलिए, आप अपने भाई बसंत सोरेन को बोलिए, हम लोग मुर्गी पालेंगे, छगरी पालेंगे और आप विधायक बनेंगे। मतलब आप उनके कथनों का विरोध नहीं कर रहे हैं, उनके फैमिली भी अगर इसको करें तो आप बड़ा समर्थन करेंगे। हाँ, तभी तो लगेगा जब वास्तव में अगर ये मुर्गी पालना मैंने MA BA की डिग्री के बाद अगर गौरवशाली पल है तो उनका फैमिली भी पाले, तभी तो एक मैसेज जाएगा। याद रखिए, लीडर जैसा होता है और वही प्रेजेंट करेगा कि जनता कैसी होगी। लीडर प्रेजेंट करे ना मुर्गी पाल के, लीडर प्रेजेंट करे सुअर पाल के, लीडर प्रेजेंट करे छगरी पाल के, जनता जाएगी। अच्छा, रात के अंधेरे में आपके खिलाफ में गोलबंदी होती है क्या? हाँ, स्वाभाविक है। हजारीबाग के तो दिन के उजाले में नहीं कर सकते हैं क्या? दिन के उजाले में उसका लाइट है, आसान नहीं है। हालांकि आज के डेट में आसान नहीं है। रात के अंधेरे में भी अगर साजिश करते हैं तो फेलियरिटी होगी, क्योंकि अगर यहाँ कुछ घुसा तो फिर कहाँ क्या। अच्छा, एक स्टेटमेंट आपने अभी रखा कि मुझे डर है मेरी जिंदगी का, ये शब्द मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं ये जानना नहीं है, मैंने ये कहा कि मुझे जान के खतरा है लेकिन मुझे डर नहीं है। क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? शक्ति महतो मारे गए, नेपाल रावंडी मारे गए, मणिनाथ मंडल मारे गए, रसी घासदा मारे गए, सुदन महतो मारे गए, कितने लोग का नाम गिनाऊं? तो मरने से डर नहीं। हाँ, ये चांसेस बनेगा ही। ये मैंने तब कहा जब हमारा एक साथी छत्तीसगढ़ के जेल से आया और आके बोला कि छत्तीसगढ़ के जेल में चर्चा है। हजारीबाग से हमारे एक साथी का टेलीफोन आया, जेल में चर्चा है। हमारे एक साथी हाल धनबाद जेल से आए, वहाँ चर्चा है। तो अच्छा, आते हैं, थोड़ा सा 2-3 मिनट और समय लेंगे। संगठित और असंगठित मजदूरों के लिए अभी मैंने बहुत सारे बीजेपी नेता या कांग्रेस के नेताओं का इंटरव्यू चला है जिसमें उन्होंने कहा 85,000 रुपया मिला, ठीक है, BCCL में काम करने वाले लोगों को। मैंने बोला क्या किसी गरीब या असंगठित मजदूर को 850 मिला? क्या मेरा सवाल बिल्कुल सही था या नहीं? देखिए, इस पर हम लोग अध्ययन नहीं किए हैं। आप हम लोग को डाटा उपलब्ध कराइए, अध्ययन करेंगे, फिर अपने नॉन रजिस्टर्ड जो मजदूर हैं उनको असंगठित, हमारे पास डाटा नहीं है कि हुआ कि नहीं भुगतान। अच्छा, उनको क्या होना चाहिए? सबको मिलना चाहिए, समान होना चाहिए, कम से कम अंतर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा कहना है कि भारत में 4 प्रकार की नौकरियां हैं, 4 ही है ना दादा? 1 2 3 4 कट रहे, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ग। तो मेरा मानना है कि उन नौकरियों में इतना अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान के चलिए जो 4th ग्रेड है वो अगर 25,000 होता है तो 3rd ग्रेड को 50 होना चाहिए, 2nd ग्रेड को 75 होना चाहिए और जो 1st ग्रेड है उनको लाख होना चाहिए। लेकिन इस राष्ट्र में असमान वितरण है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या राष्ट्रपति को 5 लाख की जरूरत है पेमेंट के लिए? क्या प्रधानमंत्री को 5 लाख की पेमेंट की जरूरत है? सारी सुख सुविधाएं उनको सरकार देती है, उनका बीमारी से लेके, उनका भोजन से लेके, उनका बेड बिछाने से लेकर सब सरकार के रूप से होता है, तो फिर उनको इतना पेमेंट क्यों जाना? मतलब ये आप कह रहे हैं कि 545 जितने भी वहाँ पहुँचते हैं उसमें एक भी व्यक्ति उतना सक्षम नहीं है कि इस आवाज़ को संसद में उठाए। अच्छा, उठाया है तो कब? वीडियो दिखाइए। मैं 14 की बात करता हूँ, मैं भारत की बात नहीं करता हूँ। मेरे 14 जो सांसद हैं इन्होंने कभी नहीं उठाया है यहाँ के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिससे झारखंड जल रहा है, झारखंड तोबा कर रहा है, झारखंड में तबाही मची है। कहाँ जल रहा है? बिल्कुल जल रहा है। कोयले की आग वाली बात कर रहे हैं। जलने का मतलब अन्याय से है, जलने का मतलब केवल कोयला से मत लीजिए। जब DC ऑफिस में जाने के बाद उसको धुतकार दिया जाता है कि तुम्हारा जमीन तो बहुत है, लूटा तो क्या हुआ? क्या DC का ये बयान होना चाहिए? जब BDO और CO के ऑफिस में जाने के बाद उसको ये बोला जाता है कि हाँ, तुम्हारा जमीन पंजे में चढ़ लिया है, जाओ जिस नेता के पास जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जब वो किसी पुलिस अधिकारी के पास जाता है अपनी अन्याय की फरियाद को लेकर, बोलता है जो करना है कर लो, सेंध देंगे, धर के धकेल देंगे, उसी को जलना कहते हैं। तो नहीं जल रहा है। अच्छा, क्या हम ये मान लें कि जयराम महतो युवाओं की आवाज़ बन चुके हैं, या अभी भी मेरे मन में एक संशय है 81 जगह आप जा नहीं सकते, 14 जगह से आप लड़ नहीं सकते? वैसे में एक कॉन्क्रीट क्या मैसेज होगा झारखंड के युवाओं के लिए? झारखंड के युवाओं के लिए मैसेज होगा, ये आंदोलन एक आधार है। आप जयराम महतो को नकार सकते हैं, धुतकार सकते हैं, आंदोलन को नहीं, क्योंकि एक यही आंदोलन है जो आने वाले भविष्य में एक साधारण व्यक्ति को लीडरशिप के लिए तैयार करेगा। बाकी 10 साल का इतिहास दीजिए, जो भी नेता बना उसका बाप है नेता तबे बना है, उसका पति है तबे नेता नहीं बनी है, उसकी माँ है तबे बेटी नेता बनी है, बाप है तो बेटी नेता बनी है, बाप है तो बेटा नेता बना है। एक भी झारखंड के पिछले 5-10 सालों का उदाहरण दीजिए जो एक व्यक्ति एक ग्राउंड लेवल से उठ के आया, एक संजय सेठ आया है उठ के, लेकिन कहाँ से आया पता है ना? वो सेठ है।
बस लास्ट एक क्वेश्चन होगा, वाइंड अप करेंगे। इसके बाद एक स्टेटमेंट मेरा ये है कि झारखंड की युवाओं की आवाज़ की बात करेंगे तो जयराम महतो सबसे पहले प्रबल तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स में इन्होंने 200% सफलता प्राप्त कर ली है। अगर राजनीति का कोई भी स्टूडेंट होगा तो दबाव सबूत घर में जाके पढ़ लीजिएगा। इन्होंने जो किया है, लेकिन एक बात और सही है, एंटी कम्बेंसी तो तैयार होगा। वो हर पार्टी करेगी, बीजेपी भी करेगा, कांग्रेस भी करेगा, जेएमएम भी करेगा, और मुझे लगता है खुले मंच पर, इन्हीं के मंच पर मैं कह रहा हूँ, जेबी केसेस भी करेंगे। अगर नहीं होता तो दूसरे दल से पार्टियों को आप अपने यहाँ क्यों ला रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, आज पॉलिटिक्स ऐसा चीज़ है कि हर घर में है, तो वे लोग तो अब आसमान से नहीं आएंगे, हमारे पॉलिटिशियन, तो लाना होगा, वे लोग आएंगे। हाउ यू आर अ प्रिंसिपल, लेकिन फाइनली हाउ यू आर अ प्रिंसिपल, यू आर टेलिंग दैट आई एम नॉट अ विकल्प, I am a Soch. I am a principal of this Jharkhand. So let me clear these things and finally we'll go with this. देखिए, सबसे पहली बात मैंने ये कहा कि हम लोग विकल्प नहीं, संकल्प हैं। विकल्प तो बहुत कोई बन के आया, हम लोग संकल्प बन के आए कि इस राज्य के जीर्णोद्धार के लिए हम लोग अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे। ये संकल्प है। चलिए खत्म करते हैं। बाबूलाल मरांडी जी ने संकल्प यात्रा शुरू किया है और आपने संकल्प बदलाव यात्रा शुरू किया है। बस दोनों को थोड़ा सा हम लोग उस तरीके से पढ़ ले, धातु और अधातु में क्या अंतर है, बस मेरा वाइंड अप हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आप भीड़ से पूछिए, हमारे सभा में बिना पैसे के बिना धन के आए हैं, और बाबूलाल मरांडी जी की सभा में जाइए और उनसे तो यही कहेंगे, चाचा बहुत अच्छे हैं। उनके बोले कुतुब मीनार से कूदे भले जाली डाल के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।